So we are live now. I'll be talking about the session, and then I would like you to give a short intro. Then we'll head on with the questions we have, and if there will be any query or question in between, we'll handle that also. Sure. So today is first live session from AHA, and we'll be talking on problems related to ops in gynae in present scenario. This session will be conducted in Hindi, English, any language you want to speak. I'll be telling the questions in English and then a summarized form of a question in Hindi too. Our speaker today with AHA is Dr. Sangeeta Chaturvedi ma'am. She is MBBS DAGO and 30 years of experience dealing the cases of obs and gynae both. She is director of Sangeeta Mother and Child Care Center at Agra. Ma'am, I would like to request you that you should introduce yourself about your experience and your dealing of cases, how you deal cases in obs and gynae in a hospital. Thank you, Nakul, Dr. Nakul, giving me this opportunity. I am Thank Dr. you. Sangeeta Chaturvedi, and I am a gynecologist and obstetrician. I am practicing at Paschimpudi Charaha, Shastipuram Road, with the name of Dr. Sangeeta Mother and Child Care Center. Uh, I have graduated from Riva Medical College, Sham Shah Medical College, and worked in so many hospitals. Now I have settled in Agra, and since 1998, I am in Agra practicing gynec and obstetrics. Uh, and yes, Nakul, what you want me to ask? Ma'am, there are some frequent questions asked by our patients Mm, only. Those mm, who are not getting good consultation or advice from their doctors. So yes. we'll be inquiring these questions today. There are almost five queries we have. Mm. So I'll be telling you questions step by step, and I wish you'll answer them all. Yes, Nakul. In present scenario of COVID, जहाँ पे हमें जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है, सारे विश्व में ये पेंडेमिक फैला हुआ है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये होती है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हम अपनी जान को जैसे भी जो भी नियम हमें मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा या जो हमें बार बार टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जो भी नियम बताए जा रहे हैं, हम उनका पूर्णतः पालन करें और सबसे पहले तो हम अपनी जान बचाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। उसके बाद कुछ मेडिकल इमरजेंसीज ऐसी हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, तो सरकार ने भी पूरा इंतजाम किए हुए हैं कि उनके लिए हम सारे प्रिकॉशन लेते हुए कम से कम मरीजों को परेशानी हो। तो कुछ बातों का, जैसे कि डिलीवरी जिनकी आसपास है डिलीवरी का समय, या जो इसी महीने है, साथ में और मेडिकल इमरजेंसी, वो सब तो हमें डील करना ही पड़ेंगी। साथ में मरीजों को, गर्भवती महिलाओं को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले जैसा हो रहा था वो अभी संभव नहीं है। कुछ उनके एक्सपेक्ट I hope there is some trouble with the connection of ma'am. We'll be shortly connected with her. मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैम हमारे साथ डील करेंगी कि कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट लेडीज और हमारे बाकी सारे जितने भी इंटर्न्स डॉक्टर्स हमारे साथ हैं आज हमारे लाइव सेशन में उन सबके फायदे के होंगे। I think the connection is dropped. मैं आप सभी के साथ पहले क्वेश्चन शेयर करता हूँ क्योंकि हम लोग लाइव हैं, so we should know the questions also. I hope she will be there anytime. Questions will be regarding जो हमारी queries हैं वो चाइल्ड मदर और चाइल्ड का न्यूट्रिशन, उनका मदर का स्ट्रेस मैनेजमेंट,
मदर के लिए जो प्रेगनेंसी में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, वो सब जितनी भी सारी हम चीज़ें डील करते हैं ऑब्ज़न गायनी के रिलेटेड, तो ये सेशन फ्रूटफुल रहेगा उन सभी के लिए जो केसेस हैं ऑब्ज़न गायनी के, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो नर्सिंग चाइल्ड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए, और मैनेजमेंट ऑफ द केस, अगर हमें सीखना है, हमें जानना है कि मैनेजमेंट कैसे होता है, उनके लिए भी। There is some trouble in the connection. I would like you all to hold upon, and we will be shortly connecting her. Basically, organizing today's session, हमारा मोटो ये था कि हम काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस में रहते हैं, जो लोग प्रैक्टिकल फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों से अगर करवाएंगे, उन लोगों की पास से अगर हमें जानकारी मिलेगी, अगर हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी, तो हमारे लिए थोड़ा फ्रूटफुल रहेगा। I hope she will be connecting with us any moment. Till then, let's see what is an issue. Nakul, sorry for interruption. Never mind now. Am I audible? Yeah. Am I audible? Yes. हाँ, तो जो लापरवाहियां मरीज पहले कर लेते थे और हम उनका कुछ हद तक निदान भी कर पाते थे, बट अब वो स्थिति नहीं है। तो जिस भी डॉक्टर को वो दिखा रहे हैं, यदि वो अवेलेबल नहीं है, जहां उनको संभव है, जिनसे दिखाना चाहते हैं, तो टाइम रहते दिखाएं और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें। मैम, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस तो हमारे बिल्कुल आएंगे। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं, हॉटस्पॉट्स में रहते हैं, और उनकी डिलीवरी टाइम नज़दीक आ रही है, उन लोगों के लिए क्या आप सोचती हैं, क्या ऐसी एक एडवाइस होगी जो इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो अपने खान पान का ध्यान रखें। जो भी पहले वो दिखा चुके हैं, उन डॉक्टर से फोन पे कंसल्ट करने की कोशिश करें, और या जो हेल्पलाइन नंबर आईएमए के थ्रू गए हैं, उनसे वो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की कोशिश करें। जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जाते हैं, उन्हें पूर्णतः फॉलो करें। जो टीके उनके रह गए हैं, वो टीके जरूर लगवाएं। कुछ जांचें रह गई हैं, तो उन जांचों को पूरा करें। यदि उस जांचों में कोई कमी आती है, जैसे कि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा चल रहा है, जैसे गर्भवती महिलाओं में प्री एक्लेम्शिया, एनीमिया या डायबिटीज या थायराइड डिसऑर्डर जो ऑलरेडी उनको है, और जो इस लॉकडाउन की वजह से वो डॉक्टर के संपर्क में नहीं रह पाए, तो उनको उन चीजों को पहले करेक्ट कर लेना चाहिए। जो चीजें हम करेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो, और हम, और यदि हॉट स्पॉट से भी इमरजेंसी के लिए, तो इमरजेंसी के लिए जाना तो अलाउड है, और सारे उसके साथ में वो दिखा सकते हैं, नहीं तो फोन पे कंसल्ट कर ले यदि डिलीवरी डेट थोड़ी दूर है तो। खान पीन का पूरा ध्यान रखना है, हरी सब्जियां, फल, दूध, जिससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, न्यूट्रिशन अच्छा रहे, बेबी की हेल्थ और उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। प्राइमरीली बेसिकली मतलब डाइट ही हमारा एक फैक्टर है जो हमें होल्ड करा सकता है ऐसी कंडीशन में। डाइट है, मेडिकल एडवाइस, चाहे मेडिसिन टेली कंसल्टेशन से, जो हॉट स्पॉट में वो तो टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। डेफिनेटली। चलिए मैम, हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो जो क्वेरीज है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट शुड बी द डाइट टू कीप बोथ मदर एंड चाइल्ड हेल्दी? Yes. Actually, there is no special diet for pregnancy. Only thing we should have nutritious diet. Nutritious diet means it should have vitamins
protein in good quantity, calcium, minerals, and milk and curd. So, to fulfill these requirements, they should have green vegetable which are available at that season. Milk or curd, whatever they want, they should have in sufficient quantity, like at least 400 milligram दिन में 3 बार मिल्क या 2 बार. उसके अलावा डॉक्टर को दिखा के आयरन एंड कैल्शियम का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो आयरन और कैल्शियम की जो मेडिसिन है वो लेना चाहिए उन्हें. साथ में जो भी सीजनल फल है वो उसको ले, जरूरी नहीं है कि महंगे फलों की तरफ जाए. सैलेड, जो भी खीरा, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, गाजर, इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए. फ्रेश हेल्दी फूड खाना चाहिए. दिन में खाने को तोड़ के बजाय 2 बार के 4 या 5 बार कर लेना चाहिए. जैसे कि सुबह उठते से ही नाश्ता इन्हें टाइम से करना चाहिए और जो मेडिसिन बताई है वो इन्हें टाइम से लेना चाहिए. प्रोटीन के लिए जो लोग वेजिटेरियन हैं, बहुत सारा दूध से प्रोटीन मिल सकता है, थोड़ा उनको दलिए से मिलता है और दालों से. दालें होता है, जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडा खा सकते हैं और नॉनवेज वालों को प्रोटीन नॉनवेज से मिल जाता है. बेसिकली जो भी उनके डॉक्टर का प्रिस्क्राइब्ड है मेडिसिन हैं और जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारी सीजनल चीज़ें हैं, हमें वो ज़्यादा बिल्कुल इनटेक करनी चाहिए. बिल्कुल. ये फास्ट फूड और ये आउटसाइड फूड को अवॉइड करना चाहिए जो हेल्दी नहीं है. ओके. अच्छा लगता है लेकिन वो बहुत हेल्दी नहीं है. ओके. ओके मैम, आई होप कुछ प्रेग्नेंट लेडीज को इसमें हेल्प मिलेगी हमारा ये सेशन देखकर. बिल्कुल. सेकंड क्वेश्चन मैम, व्हाट टाइप ऑफ वर्क अ मदर शुड डू एंड शुड अवॉइड. मैं इसे हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट करके बताना चाहता हूँ. जो क्वेरीज आती हैं कि फर्स्ट मंथ टू 9 मंथ की लेडी प्रेग्नेंट है, ये काम करना है, वो काम नहीं करना है, ये उठाना है, वो नहीं उठाना है, तो आप क्या कहती हैं, आपके एक्सपीरियंस से क्या और कब कैसे काम करने चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है. हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप रेस्ट करिए. जितना आप रूटीन वर्क करते रहेंगे, जो आप करते थे, जिसमें आपको थकान नहीं हो रही है, उतना रूटीन वर्क कर सकते हैं. लाइक आपका अपना घर का काम, नहाना धोना और खाना बनाना, ये सब आप कर सकते हैं. यदि आपका वर्क पैटर्न इसी तरीके का है तो कोई दिक्कत नहीं है. सिर्फ हम बहुत भारी वजन उठाने को मना करते हैं या लगातार इतना काम करने को जिससे आपको थकान महसूस होने लगे, ऐसा काम नहीं करना है. और सिर्फ भारी वजन का एक वो है, झटके से कोई चीज उठा ली हमने या बहुत सारा वजन उठा लिया, आप उसे तोड़ के थोड़ा थोड़ा उठा सकते हैं कि नहीं मैडम, हमारे पास एक बोरा था, मैंने बोरा सरका लिया. तो जरूरी नहीं है, आप उसको कम करके भी सरका सकते हैं. तो बहुत ज्यादा काम का मना नहीं है. स्पेशली वर्किंग लेडीज के लिए प्रॉब्लम आती है कि उनको घर भी देखना होता है और अपना जॉब भी करना होता है. तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में रूटीन थोड़ा इस तरीके से बनाए जिससे कि उनको भी रेस्ट भी मिले, उनका काम भी चलता रहे. और डाइट का विशेष ध्यान रखें. मतलब 2-3 तरह के अपने लंच बॉक्सेस बना के ले जाए वो अपने ऑफिस प्लेस पे, जहाँ पे वो थोड़ी थोड़ी देर में न्यूट्रिशियस खाना खा सके. बहुत लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करना चाहिए. यदि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में हो रहे हैं, लाइक आपको जैसे पैरों में सूजन आ रही है, तो आपको थोड़ा पैर बीच बीच में किसी सामने स्टूल रख के उस पे आप रख के कर सकते हैं, लंबे समय तक ना खड़ा रहे. या किसी को वेरिकोज वेन्स प्रेगनेंसी में डेवलप हो गई है तो उनको लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करना चाहिए. आपको शुगर डेवलप हो गई है यदि प्रेगनेंसी में, लाइक आपको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, आप डायबिटिक हो गए हैं प्रेगनेंसी में, तो आपको बहुत लंबे समय तक का भूखा रहना ये अवॉइड करना चाहिए. तो काम के लिए काम की मनाही नहीं है, बल्कि काम अपना रूटीन करते रहे. वॉकिंग इज वेरी हेल्पफुल, वेरी गुड. यदि आपको डॉक्टर ने जब तक रेस्ट करने को नहीं बोला है तब तक हल्के काम करने में कोई भी परेशानी नहीं है. तो
मैम हम जो भी हमारा शेड्यूल है उसे हम मैनेज करें और भारी वजन या इस तरीके की चीज़ें ना उठाएं, तो हम इस पूरे टाइम को अच्छे से निकाल सकते हैं, सेफली हाँ, निकाल सकते हाँ, यदि आप किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन है, हैं। ओके। तो उस जगह पे आपको प्रेगनेंसी में नहीं रहना चाहिए, या आप किसी ऐसी केमिकल फैक्ट्री में जहाँ पे फ्यूम्स हैं या बहुत इस तरीके के कोई हार्मफुल गैसेस हैं, तो आपको वो अवॉइड, आप अपना वर्क इस तरीके का ले लें जो इस एरिया को अवॉइड कर सके। अवॉइड कर सकते हैं। मैम इसी बीच ये क्वेरी है इस क्वेश्चन के साथ, जिस तरीके का माहौल अभी 2 महीने से चल रहा है लॉकडाउन का, उसमें काफ़ी सारी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम के एडवाइस किया है। तो जी, काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो अपने ऑफिस में काम करती थी, वो लैपटॉप से या मोबाइल फ़ोन से काम कर रही हैं, लेट नाइट काम कर हाँ, रही हैं। जी, ऑलमोस्ट सुनने में आ रहा है कि जो काम 8 घंटे में होता था वही काम 12 और 15 घंटे में शिफ्ट हो गया है। तो हम्म। ऐसे में क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए जो वो ले सकती हैं? मतलब लैपटॉप पे काम करने के प्रिकॉशंस। हाँ जी, जैसे आपने मुझे बताया कि जी, एक जगह नहीं ज़्यादा बैठो, थोड़ा-सा मूव करते रहो, थोड़ा-सा एक्टिव रहो बेसिकली। हाँ, तो बेसिकली ऐसे लोग इनएक्टिव टाइप के हो रहे हैं, तो ऐसे में इन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? नहीं, वर्क फ्रॉम होम में तो आपको एक लिबरल मिल गई है कि आप थोड़ा सा टहल सकते हैं बीच बीच में। जी, पूरे समय जैसे ऑफिस जाते हैं तो आपको कंटिन्यूस वहां पे बैठना ही है, लेकिन जब आप घर से काम कर रहे हैं तो आप अपना पोस्चर चेंज कर सकते हैं, बीच बीच में आप अपना खाने का भी ध्यान रख सकते हैं, और जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है बैठे बैठे आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना बैक बैक का ध्यान रखना है। वर्क फ्रॉम होम में तो आपके पास बहुत सारा रिलैक्सेशन है, आप बीच में लेट भी सकते हैं, तो घर से तो मैनेज करना और आसान हो गया है। वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं लेकिन बीच बीच में आपके पास रिलैक्स टाइम भी है। ओके। मैम एक क्वेरी है, हम पहले उसे सॉल्व करेंगे। एक गौरव शर्मा जी हैं, पूछ रहे हैं कि इज़ एसी गुड फॉर प्रेग्नेंट वुमन और नॉट? एसी नुकसान का नहीं है, कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा कोल्ड या बहुत ज्यादा हॉट किसी के लिए भी नुकसान का है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी है। इफ शी इज नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल, बिल्कुल बिना एसी के नहीं है, तो एसी में बैठने में कोई नुकसान नहीं है। कंटिन्यूस एसी तो वाटर आपका एब्जॉर्ब करता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन करता है, तो पानी की क्वांटिटी अच्छे से लेते रहे जिससे हाइड्रेशन प्रॉपर बना रहे बॉडी में। ओके, थैंक यू मैम। थर्ड क्वेश्चन, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन थॉट, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड हेल्थ? इफ यस, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस? जो ये बेसिकली आज लॉकडाउन का सबसे मेन क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत रिलेशन है थॉट प्रोसेस का, आपके उस समय आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे और बच्चे की हेल्थ पे, ऐसा ये साइंटिफिकली भी अप्रूव हो गया है कि जिस तरीके का अपना मेंटल थॉट और इमोशंस को लेडी प्रेगनेंसी में रखती है, उसका असर बच्चे पे जरूर पड़ता है, वो भी हैप्पी चाइल्ड और हेल्दी चाइल्ड मेंटली होता है। तो एक तो लॉकडाउन में जो पेंडेमिक है इसके वजह से सबको स्ट्रेस है, और स्ट्रेस इतना जेन्युइन है, स्ट्रेस ना करो ना लो ये कहना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल। अपने आप को थोड़ा डिविएट करके हम कुछ पूरे समय न्यूज देखना और जी। उसमें यही निगेटिव कि इतने बीमार के नंबर बढ़ गए या इतनी डेथ हो गई, तो आप अपनी अवेयरनेस के लिए न्यूज को कम से कम देखें, जिससे आपके पास नॉलेज भी, मतलब न्यूज भी पहुंच जाए और आप उसको बार बार देख के घबराए भी ना, है ना। और जितने सारे आपको प्रिकॉशंस जैसे हैंड हाइजीन, यस मैम, हैंड हाइजीन एंड जैसे हैंड हाइजीन, प्रॉपर हाइड्रेशन, जी। फेस कवर करके बाहर निकलना, पहली बात तो घर से निकले ना, और यदि आपको निकलना पड़ रहा है तो फेस कवर करके हाथ में सैनिटाइजर लेके निकले। सैनिटाइजर का भी बहुत सारा प्रयोग हमको नहीं करना है। इफ यदि आप अपने हैंड हाइजीन, हाथ हैंड वॉशिंग प्रॉपर कर रहे हैं तो सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं है। सैनिटाइजेशन उसी वक्त यूज करना है जब आपके पास हैंड वॉशिंग फैसिलिटी
नहीं है। तो नहीं होता। आप कवर करके चले, अपने ढीले कपड़े पहने, ढीले कपड़े मतलब जैसे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो ऐसे भी कपड़े ना हो जो आपके फ्लेयर करते हो और इधर उधर टच करें। तो सिर्फ डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखें। घर में किसी भी उसमें औपचारिकता में किसी को भी ना एंटर होने दें, ना आप किसी के घर जाए। तो जो कोरोना के जो जनरल नियम है वो आपको 100% पालन करना है और इस तरीके से अपना ध्यान रखना है। आप मतलब किसी भी, आपके पास कोई हॉबी है तो आप उसको, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। खाना अच्छा बना के खा सकते हैं, कुछ अच्छे वीडियो देख सकते हैं, कोई अच्छे पॉजिटिव लोगों से बात कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर नेगेटिविटी कम से कम रहे। और ओके। कोरोना के साथ रहना है, आपको प्रेग्नेंट हैं, आपको स्वस्थ बच्चे को जन्म देना है, इसको, इससे तो हटा नहीं जा सकता। तो आप अपने आप को कूल, रिलैक्स, काम कैसे रखेंगे, इसके लिए इन नेगेटिव चीजों से दूर रहना। धर्म पूजा कर सकते हैं, आपको उससे शांति मिलती है। आप मंत्र पढ़ सकते हैं, है ना, मंत्रोच्चारण बहुत अच्छा है। जी। आपकी कोई हॉबी है, कर सकते हैं। पेड़ पौधे की अपने घर में केयर कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रखते हुए। बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट में यही है कि हमें पॉजिटिव थॉट्स को एंगेज करना है, पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में हाँ, रखना है और अपनी जो पार है, जो मेंटल पार है, इसे रेगुलेट करते हुए अच्छी चीज़ों में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू मैम। सो फोर्थ क्वेरी, पोस्ट डिलीवरी हाउ टू कीप द बेबी हेल्दी एंड हिज और हर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है आज, इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग रखी जाए। तो मैं आपका बिल्कुल। क्वेश्चन। हाँ, एक तो ये जो बच्चे को हेल्दी रखना हमारा गर्भ धारण करते ही हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। ओके। जो 9 महीने हमें मिलते हैं, हमें नेचर ने वो 9 महीने बहुत सोच समझ के दिए हैं, जिसमें हम एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। हम यदि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में अपना ध्यान नहीं भी रखते थे या अनहेल्दी रूटीन फॉलो करते थे, तो हमें उस चीज को सुधार लेना है। हमें ओके। अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। ओके। हमें अपना स्लीप का बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा दिन में 1 से 2 घंटे का आराम और हमारी 6 घंटे की रात में नींद पूरी हो जाए, इसका ध्यान रखना है। खाने पीने के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस और मिल्क और कर्ड, ये चीजों का हमें ज्यादा सेवन करना है। ओके। दूसरा, और मेडिसिन जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, हमें समय हर महीने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है। प्रेगनेंसी में वो वैक्सीनेशन होते हैं कुछ, जैसे टिटनस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन होता है, तो वो किस समय क्या लगना है अपने डॉक्टर से पूछ के जरूर लगवा लें। आजकल 2 वैक्सीनेशन और होते हैं, फ्लू वैक्सीन और टी डैप। तो ओके। फ्लू वैक्सीन हमें जनरल कॉमन फ्लू से बचाने के लिए होता है, तो मदर को प्रोटेक्ट करता है और बच्चे को पैदा होने के 6 मंथ तक बच्चे को भी प्रोटेक्ट करता है। ऐसे टी डैप, जिसमें पर्ट्यूसिस डिप्थीरिया का है, वो बच्चे को जन्म के 6 महीने बाद तक उसको प्रोटेक्ट करता है और माँ को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे गवर्नमेंट के रूटीन में नहीं है, तो इनको हम चाहें तो अलग से लगवा सकते हैं। तो बच्चे का इम्यूनाइजेशन और ये इम्यूनिटी हमने प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट कर दी। बच्चा पैदा होने के बाद हमें उसके टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि उसको बहुत ठंडे में नहीं रखना है या बहुत गर्म जगह पे भी नहीं रखना है। बहुत सारे कपड़े उड़ा के ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि बच्चों में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं आता है, थोड़ा टाइम लेता है आने में। तो यदि हम बहुत गर्म जगह पे रखेंगे तो उसे बुखार जैसी शिकायत हो जाएगी, बहुत ठंडे में रखेंगे तो बच्चे का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बच्चे को भी बच्चे की हाइजीन मेंटेन करना है, उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाने हैं, उसे साफ सुथरे कपड़ों पे लेटाना है। ठीक है। ओके। ब्रेस्ट मिल्क सबसे अच्छा साधन है इम्यूनिटी के लिए। तो
हमें ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को देना है। किसी भी हालत में गुड़ का पानी, चाय का पानी या चाय या बाहर का दूध, गाय का दूध या डब्बे का दूध नहीं देना है जब तक कि माँ का दूध अवेलेबल नहीं है। उन्हीं कंडीशंस में इन चीजों की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो सिर्फ माँ का दूध बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद बच्चों के डॉक्टर से बच्चों के टीके समय पे लगवाएं, और बच्चे जी, बच्चे को जो लोग पहली बार माँ बन रही हैं, तो बच्चे जी, को खिलाने में कब क्या देना है ये सब वो डॉक्टर से सलाह लेके उनको बच्चे को दे सकती हैं। कि हम 6 महीने पे बच्चे का अन्नप्राशन करते हैं। हमारी तो खुद अपने संस्कारों में परंपरा है, हम अन्नप्राशन करते हैं बच्चे का, तो जी, उसको थोड़ा सॉलिड देना और अन्न देना शुरू करते हैं। तो जो हमारे नियम भी बहुत कुछ साइंटिफिक थे, तो हम बच्चों के डॉक्टर से समय समय पे सलाह लेके उसका इम्यूनाइजेशन पूरा रखें, जिससे उसे भविष्य में कई बीमारियों से बचाया जा सके, और उसके जी, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। और साथ में बच्चे की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें कि घर में बच्चे को सिखाने के लिए बहुत सारे किसी स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है कि आप हर चीज बच्चे को भेजें। तो सारी चीजें आप जो बच्चे को सिखाना चाहती हैं, सबसे अच्छा माध्यम है आप खुद वो चीज करें, तो बच्चा देख के खुद सीखने लगेगा। और बच्चे को शुरू से ही हेल्दी रूटीन की तरफ उसको डालने की कोशिश करें। तो पूरी तरह बच्चे की इम्यूनिटी के लिए मदर की इम्यूनिटी और मदर की पॉजिटिविटी ही ज़्यादा कारगर रहती है। बिल्कुल, यदि वो एक बच्चा 9 मंथ्स हेल्दी चीजें उसको मिल गई और वो हेल्दी जी, पैदा हुआ है, तो जी, उसकी जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी अच्छी ही रहेगी। शुरू में ही यदि उसको किसी हेल्थ स्ट्रगल करना पड़ गया पैदा होते से ही, कि प्रॉपर जगह पे उसकी डिलीवरी नहीं हुई, उसे कहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई, या हमने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी, नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन हमने खुद ही डिसाइड करना शुरू कर दिया, इन कंडीशंस में हम आगे के लिए भी उसके परेशानियों के बीज बो देते हैं। Ma'am, there is a query. Our director has asked this query. What are the precautions to undergo to avoid cesarean and to go normal delivery, which is uncommon nowadays? uh, there are certain indications that are called जी, absolute indications, in which case you cannot avoid cesarean, like if baby is transverse, you cannot do, you have to go for cesarean delivery. Nowadays, primary means first delivery and with breech presentation. In that case also, you have to see what is the weight of baby, whether and pelvic room is how much spacious. If there are okay, chances of smooth delivery, then only you will go for vaginal delivery. Otherwise, you have to go for cesarean delivery. okay, In some cases, patient's stamina is not good. She cannot bear labor pains. She cannot have proper lung capacity. So, in some extent, uh, throughout 9 months, the lady should do pranayam. So she has good lung capacity. She can hold breath. She can push the baby at the time of delivery, and she should be walking throughout pregnancy, like morning walk or evening walk, but whatever time she it's convenient for her, she should have at least 1 or 2 kilometer walk every day with fresh air. okay, And if she has no anemia, she doesn't have any complication like diabetes, thyroid, or blood pressure, which are not indicating cesarean delivery. She is having normal pregnancy, she is having normal other parameters, and जी, baby is healthy. She has done some exercises are also there, pelvic exercises, which she okay, should start doing at the in the pregnancy and in later months of pregnancy. So there will be flexibility of joints, and pelvic room will be good enough, so there will be more chances of normal delivery. But okay, if there is certain indication which contradicts normal delivery, then you should not try normal delivery. okay.
सो बेसिकली ये दो वर्ड्स पे जाके सेटल होता है। अगर हम मैनेजमेंट ठीक से रखेंगे विद इन प्रेगनेंसी मंथ्स, और अगर हम्म, हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, तो हम वजाइनल डिलीवरी या फिर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल फर्स्ट नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी में कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दिखाना नहीं है। जो मेडिसिन के अलावा जो बाकी एडवाइजेस हैं जो डॉक्टर देते हैं प्रेगनेंसी में, बहुत यूट्यूब है प्रेगनेंसी में आपकी पेल्विक एक्सरसाइज के, वो देख के कर सकते हैं, तो उनको प्रॉपर फॉलो करिए। तो आपके नॉर्मल सिजेरियन तो तभी होता है ना जब नॉर्मल नहीं हो पाता। या कुछ चीजें हम अपनी गलती की वजह से जो नॉर्मल हो सकता है उसको भी हम सिजेरियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इतना एनीमिया कर लिया या इतना हमने बहुत जंक फूड खा के अपना बाकी सब वेट इतना कर लिया, हमारे में ताकत ही नहीं है, हम बियर डाउन ही जी। नहीं कर सकते। तो उन चीजों में तो हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ओके, द सेशन इज गोइंग वेरी वेरी एंथुसियास्टिक, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज आने लगी हैं। गौरव शर्मा जी की बिल्कुल। दोबारा एक क्वेरी आई है। इफ प्रेग्नेंट लेडी हैव स्वेलिंग इन हर फीट, then is there any method to overcome the swelling? Actually, when there is swelling in pregnancy in feet, we have to see the cause of swelling. Okay. Whether it is whether it is because of hypertension, whether she is developing preeclampsia. Preeclampsia is swelling, albumin in urine, and high blood pressure. जी. If she is developing these, or she has developed diabetes, or she has some heart problem, all these things we have to rule out. General swelling, to avoid general swelling, this is the tip. We should avoid long standing because of gravity, fluid gets collected in feet. We should avoid long standing. In between our work, we should sit and raise our legs. But we have to rule out any other cause of swelling. Cause the swelling. Okay. Thank you, ma'am. Another query by Dr. Disha. There are many cases of women which are coming COVID positive after delivery. How to Mm. feed newborn in that case, and what steps should be taken to take care of that mother and child? Till so far, vertical transmission of COVID is not proved, like mother to baby. Mother to baby. So there are less chances that during delivery baby will contact COVID. Okay. But if mother is COVID positive after delivery, if baby is in touch with mother, there are chances baby can get COVID infection. So after delivery, baby will be separated and mother will be getting care as other normal COVID patient. COVID patient. This is the thing. Otherwise, during delivery, there are not very less chances of Okay. baby getting infection. Okay. Thank you, ma'am. There is a query from Dr. Ankush Sharma. He asks, what are the precautions a pediatric patient should take for pregnancy, and what are the precautions a lady should take if she has a twin pregnancy? Yes. If the lady has twin pregnancy, Yeah. she should have more consultation with gynecologist because twin pregnancy is a special pregnancy. Okay. She should have proper healthy diet so both the baby get enough nutrition and they are healthy. She should avoid extraneous work, any heavy work she should avoid. It's not advised rest for 9 months, but she should be very comfortable doing her work. And regular checkup with gynecologist. Any in multiple pregnancy, there are chances of other complication also, like diabetes. The chances are high. So regular checkup, proper diet, and proper care, and follow advices which are given by gynecologist. Okay. So these are the only precaution, and there are chances in multiple pregnancy, preterm delivery के बहुत chances होते हैं.
तो preterm delivery में twin babies with less weight, we should be prepared to avoid preterm delivery, and we should be prepared for an ICU admission also for babies. So they will be requiring extra care. So she should have consultation with good gynecologist, and she should have her delivery conducted in an institute or in a hospital where all these facilities are available. Okay. Preparation is must, like preparation of herself, preparation for babies, preparation for good hospital, preparation for good gynecologist. Okay. There was one question in his query. What are the precautions a pelvic inflammatory disease patient should take for pregnancy? If there is pelvic inflammatory disease, she should get it treated before pregnancy. Okay. During pregnancy with pelvic inflammatory disease, there will be chances of abortion. Okay. So if it is there, she should get treated. So if अगर ऐसा कोई चांस रह जाता है मैम कि उसे अभी ड्यूरिंग डिलीवरी ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ट्रीट होना चाहिए, तो ऐसा है कि वो ट्रीट हो जाएगी और अबॉर्शन की तरफ नहीं जाएगा? हाँ हो सकता है. Okay. If there is any infection, it will be treated. Okay. It will be treated. There are medicines. Okay. There is a question, ma'am. I think it will be good. एक मुझे word दिख रहा है इसमें, myth. There is a several myth in society that private hospital always prefer to do cesarean deliveries to reduce their time. Is that right or wrong? It's wrong. Okay. I It's really totally appreciate your answer. It's a one word clear cut answer. It's wrong. I hope Gaurav Sharma ji will have that answer. So we'll be heading towards the question 5. Due to lockdown, in many areas, consultation has become difficult. So how can one manage in this situation? Hospitals are not closed. First of all, in lockdown also, hospitals are not closed. Yes. If the hospital which you were going, it is not available for you, or doctor, it is not available, you can choose other hospital or other doctor. Okay. And government facility is never closed. Okay. So you should, whatever is available, you should consult them. Okay. Not sitting at home and treating yourself, doing self-medication and inviting complication. तो जो प्रोबेबल चीजें हैं जो मिल सकती हैं उन पे हमें स्विच कर जाना चाहिए, इनफैक्ट स्विच कर जाना चाहिए. एंड यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ एंड हॉस्पिटल बिफोर, नॉट you develop pain and then you are searching for hospital which is available. If you see your doctor, your hospital is not available, beyond reach, and you want to switch to other hospital, then you consult that hospital beforehand. Okay. Thank you, ma'am. So we have ended our online queries and our queries we have got earlier. I would like you to tell us any advice, any important thing related to mother, child, or a pregnant lady in this scenario. Yes, for mother and mother, I have enumerated so many precautions which she can take. बच्चे के लिए प्रॉपर डाइट और इम्यूनाइजेशन, ये दो चीज बहुत जरूरी है. एंड प्रॉपर केयर ऑफ बच्चे की, प्रॉपर केयर कि बच्चा कभी भी यदि कंफर्टेबल होगा तो रोएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा. बच्चा या तो भूखा होगा, परेशान करेगा. यदि उसके क्लोथ अनकंफर्टेबल है तो आपको परेशान करेगा. टेम्परेचर अनकंफर्टेबल है तो आपको परेशान करेगा. या उसे बहुत ज्यादा आपने गर्म या ठंडा कर दिया तो परेशान करेगा. तो इन चीजों का ध्यान रखना है. सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम आ रही है प्रेग्नेंट लेडीज के साथ में, एक तो वो जा नहीं पा रही है, तो जो भी है फोन से कंसल्ट कर लें. जब उन्हें डॉक्टर यदि जरूरी है बुलाता है तो आप दिखा लें. इस समय गवर्नमेंट एडवाइजरी है कि जो प्रेग्नेंट लेडी नियर डिलीवरी है उनका कोविड टेस्ट करके वो निगेटिव है तो उन्हें
नॉन कोविड हॉस्पिटल में, और यदि पॉजिटिव है तो कोविड हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी कंडक्ट कराना चाहिए। तो यदि टेस्ट के लिए डॉक्टर एडवाइस करे, बिकॉज ये गवर्नमेंट एडवाइजरी है एंड जरूरी है, आप पॉजिटिव हैं तो आप दूसरों को इन्फेक्ट करेंगे, और आप नेगेटिव हैं तो अननेसेसरली आप खुद एक्सपोज होंगे। तो यदि आपको टेस्ट कराए जाने को बोला जा रहा है तो आप वो टेस्ट जरूर करा लें। गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है और प्राइवेट में भी कुछ लैब कर रही है। तो डॉक्टर के टच में रहें और जो सलाह दे रहा है उसको पूरा करिए। किसी भी क्वैक हॉस्पिटल या अनट्रेन्ड हाथों में जाने से बचें। जहां आपकी इच्छाएं तो शायद पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको कुछ और कॉम्प्लिकेशन मिल जाए। तो प्रॉपर इस समय प्रॉपर हेल्थ केयर, जो हम आइडियल हेल्थ केयर जो हम हमेशा कहते हैं, वो इस समय आपको किसी भी हालत में चूकना नहीं है। Ma'am, there is a last online query. What food should be taken by anemic pregnant lady? If she is anemic, mild anemic, then with food she will recover. But generally in pregnancy and lactation, iron requirement is more. तो हम लोग वैसे भी आयरन की टैबलेट इसीलिए देते हैं क्योंकि नॉर्मल कंडीशन से प्रेग्नेंट लेडीज में आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो खाना है जिसमें आयरन ज्यादा होता है, पालक, चुकंदर, अनार, और साथ में विटामिन भी हम लेंगे, जैसे हम टमाटर लेंगे, गाजर लेंगे, हरी सब्जियां लेंगे, तो इनके साथ में हमको आयरन मिलेगा। लोहे के बर्तन में बना हुआ खाना, उसमें भी हमें आयरन पहुंचता है। तो हमें अनार, पालक और चुकंदर, ये 3 चीजों में बहुत आयरन है, इनको ज्यादा क्वांटिटी में लेना। Okay. So thank you, ma'am, for this beautiful session. I hope Thank you, Dr. Nakul. It was very nice session, and I am glad. So, because nowadays I am not able to give advices to my patients. I am very much worried for pregnant ladies because this emergency cannot be avoided, and they should have little extra precaution during these days. So, this was platform for me to convey my message. Thank you, Dr. Nakul. Thank you, ma'am. We'll meet soon. Thank you. Thank you. Bye.